بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني يا عليم علمني يا عليم علمني. علم النحو کا ہمارا یہ 9واں سبق ہے، اور اس سے پہلے ہم 8 سبق پڑھ چکے ہیں۔ لفظ سے ہم نے آغاز کیا تھا، پھر لفظ کی 2 قسمیں بنی تھی، محمل موضوع۔ موضوع کی 2 قسمیں بنی تھی، مرکب اور مفرد۔ مفرد کی 3 قسمیں بنی تھی، اسم فعل حرف۔ پھر اسم کی 7 تقسیمات بنی تھی۔ پہلی تقسیم بے اعتبار تعداد، واحد، تثنیہ، جمع، 3 قسمیں آپ کو بتا دی۔ دوسری تقسیم بے اعتبار جنس، مذکر، مؤنث، یہ آپ کو بتا دی۔ آج تیسری تقسیم جو ہے بے اعتبار تعریف اور تنکیر کے ہے، خاص اور عام ہونے کے اعتبار سے ہے، تعین اور عدم تعین ہونے کے اعتبار سے۔ یہ مختلف الفاظ ایک ہی معنی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تعریف و تنکیر، خاص، عام، یا اسی طرح تعین و عدم تعین۔ ٹھیک ہے۔ معرفہ، معروف و مشہور، جو چیز معروف ہوتی ہے، مشہور ہوتی ہے، خاص ہوتی ہے، ہر ایک کو معلوم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تعریف و تنکیر کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں۔ تعریف و تنکیر کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 معرفہ اور نمبر 2 نکرہ۔ نکیرہ یا نکرہ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، معرفہ اور نکیرہ۔ تعریف اور تنکیر کے اعتبار سے، خاص اور عام ہونے کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہوئی؟ 2 قسمیں، معرفہ اور نکیرہ۔ معرفہ سے مراد خاص چیز، معرفہ سے مراد کیا ہے؟ خاص چیز، جو کسی خاص یا معین چیز پہ دلالت کرے، جو کسی خاص یا معین چیز پہ دلالت کرے۔ جیسے الکتاب، ایک خاص کتاب، الفرس، خاص گھوڑا، کراتشی، یہ شہر کا نام ہے، احمد، احمد ایک بندے کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، ایک خاص بندے کا نام ہے۔ نکیرہ وہ اسم ہے جو عام شخص، عام جگہ یا عام چیز کے لیے بولا جائے، یعنی جو کسی معین اور مخصوص چیز پہ دلالت نہ کرے۔ جیسے رجل، کوئی مرد، فرس، کوئی گھوڑا، بلد، کوئی شہر، طالب، کوئی طالب علم، کتاب، کوئی کتاب، مدرسۃ، کوئی مدرسہ۔ ٹھیک ہے، یہ نکیرہ ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ نکیرہ۔ آگے پھر معرفہ اور نکرہ کو ہم نے پہچاننا کیسے ہے، کیسے ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ معرفہ ہے؟ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہ معرفہ ہے یا یہ نکرہ ہے؟ تو معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں آپ کے سامنے لکھی ہیں۔ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو معرفہ کی کتنی قسمیں؟ 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ضمائر۔ ضمائر آپ بول دیں یا اسم ضمیر کہتے ہیں، دونوں ایک جیسا ہے۔ ٹھیک ہے۔ علم، یہ علم نہیں ہے، عین کے زبر کے ساتھ ہے، علم ہے۔ کیا ہے؟ علم ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی نمبر پہ اسم اشارہ، اسم اشارہ، ضمیر یا ضمائر دونوں طرح، میں ضمیر بلکہ لکھ لیتا ہوں، تو کیا لکھتا ہوں؟ اسم ضمیر۔ علم اسم اشارہ، اسم موصول، اسم موصولہ۔
इसमें मौसूल है, ठीक है। मुअर्रफ बिल्लाम, ये लफ्ज क्या है? मुअर्रफ बिल्लाम, मुअर्रफ बिल्लाम। आगे मुअर्रफ बिल इजाफा, मुअर्रफ बिल इजाफा। फिर आगे मुअर्रफ बिन निदा, मुअर्रफ बिन निदा, ठीक है। इसमें ज़मीर की एक मिसाल दी हुआ, आगे इंशाल्लाह इसमें ज़मीर के हवाले से तफसील से हम पढ़ेंगे। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंत, अंतुमा, अंतुम, अंतिमा, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। आलम जैसे अहमद है, कासिम है, खालिद है, जो भी नाम है ये आलम है। इसमें इशारा हाज़ा, ज़ालिका, किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए जो इसम इस्तेमाल होता है उसे इसमें इशारा कहते हैं। ये नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को? आप भी अजीब लोग हैं, बताते ही नहीं कि यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहा। मुझे तो नज़र आ रहा था। ये नज़र नहीं आ रहा था आप लोगों को? अभी नज़र आ रहा है? जी, चलें, ये बता दिया करें, जल्दी से बता दिया करें, आप लोग बताते नहीं है जल्दी। तो ये आपके सामने है, इसमें ज़मीर जैसे हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, तफसील से हम पढ़ेंगे। फिर आगे आलम, आगे क्या है? आलम जैसे अहमद, कासिम, खालिद, कोई भी। इसमें इशारा किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए, किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए, ठीक है। इसमें मौसूल जैसे अल्लज़ी, ठीक है। अल्लज़ी, उर्दू में हम जिस, जो का तर्जुमा जो हम करते हैं वो इसमें मौसूल होता है, ठीक है। इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे इनको। मुअर्रफ बिल्लाम, इसम के शुरू में अल दाखिल किया जाए। अल जब शुरू में लगाते हैं तो इसको मुअर्रफ बिल्लाम कहते हैं। अल शुरू में लगाते हैं, जिस तरह यहाँ पे किताब के शुरू में अल लगा दिया, अल किताब बन गया। तो ये जो शुरू में अल लगाते हैं इसको मुअर्रफ बिल्लाम कहते हैं, ठीक है। ये भी मारिफा है। मुअर्रफ बिल इज़ाफ़ा, मुअर्रफ बिल इज़ाफ़ा, इससे मुराद होता है कि मारिफा की तरफ मुज़ाफ बनाया गया हो, मारिफा की तरफ मुज़ाफ बनाया गया हो। मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह के हवाले से इंशाअल्लाह हमारा सबक होगा, मुरक्कबात में तफसील से इसको समझेंगे, ठीक है। अभी आपने सिर्फ नाम याद रखना, जैसे रसूलुल्लाह, रसूल मुज़ाफ है, लफ्ज़ अल्लाह मुज़ाफ इलैह है, तो रसूल की इजाफत अल्लाह की तरफ की गई है। मुअर्रफ बिन निदा, हरूफ निदा के ज़रिए से जिसको मारिफा बनाया गया हो, जैसे या जिबालू, या जिबालू, या जो है हर्फ निदा है और इसको हर्फ निदा के ज़रिए से मारिफा बनाया गया। खुलासा ये हुआ कि तारीफ़ व तनकीर के एतबार से इसम की दो किस्में हैं, मारिफा और नकेरा। मारिफा जो ख़ास इसम पे दलालत करे, ख़ास जगह, ख़ास चीज़ के बारे में बताए, और नकेरा जो आम चीज़ पे दलालत करे, आम शख्स, आम जगह या चीज़ के लिए बोला जाए, यानी ऐसी चीज़ जो मुतय्यन ना हो, जैसे रजुल, कोई आदमी, रजुल कोई आदमी, किताब कोई किताब। फिर आगे मारिफा की जो है वो 7 किस्में हैं। मारिफा की कितनी किस्में हैं? 7 किस्में हैं। जैसे इसमें ज़मीर, आलम, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुअर्रफ बिल्लाम, मुअर्रफ बिल इज़ाफ़ा और मुअर्रफ बिन निदा, और मुअर्रफ
बिन्निदा। तो आज का ये हमारा सबक है। ये तफसील से मैंने आपको नहीं पढ़ाया, जानबूझ के तफसील से नहीं पढ़ाया, क्योंकि इनके हवाले से हर एक के बारे में हम इंशाल्लाह तफसील से हम पढ़ेंगे। इसमें ज़मीर के बारे में, इसमें इशारा के बारे में, इसमें मौसूल के बारे में, इजाफत के बारे में, निदा के बारे में, इसके बारे में हम क्या करेंगे, तफसील से पढ़ेंगे। तो आपके करने का काम ये है कि इनको आपने क्या करना है, याद कर लेना है। इनको आपने आज सिर्फ याद कर लेना है, कल फिर इंशाल्लाह इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। तो हमने इल्म नहव के बारे में जो कुछ पढ़ा है, इसको हमने 6 हिस्सों में तकसीम करना है। इल्म नहव को हमने क्या करना, 6 हिस्सों में तकसीम करना है। पहले मुफरदात, मुफरद के बारे में हम बहस कर, अभी तक हम कहाँ पे है, मुफरद, मुफरद के बारे में हम पढ़ रहे हैं। फिर ये इसके बाद इंशाल्लाह मुरक्कब शुरू करेंगे, मुरक्कबात। फिर उसके बाद मुअरबात, मुअरब शुरू करेंगे। फिर उसके बाद मबनी यानी मबनियात शुरू करेंगे। फिर उसके बाद अवामिल और मामूल। तो हमारी ये तरतीब होगी। अब हम मुफरद में चल रहे हैं, इंशाल्लाह 1-2 असबाक में मुफरद हमारा मुकम्मल हो जाएगा। तो मुफरद मुकम्मल होने के बाद फिर हम मुरक्कब शुरू कर देंगे, और मुरक्कब शुरू करने के साथ साथ हम जुमला बनाने का तरीका और तरकीब जो है वो इंशाल्लाह बयान करेंगे। अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा है ये भी बहुत अहम है। ठीक है, सबसे पहला काम हमने अरबी इबारत में क्या करना होता है कि हमने पहचानना है कि इसम है, फ़ेल है या हर्फ है। जब हमने पहचान लिया, मसलन इसम है, फिर आगे इसम की 7 तकसीमात है। अभी तक हमने 3 तकसीमात पढ़ी है। हमने 3 तकसीमात पढ़ी है। पहली तकसीम जो है तादाद के एतबार से वाहिद, तस्निया, जमा, हर एक की तफसील आपको बता दी है। दूसरी तकसीम बेतबार जिन्स, मुज़क्कर, मुअन्नस, आगे फिर मुअन्नस की किस्में वगैरह सारी तफसील बता चुका हूँ। आज ये हमारी तीसरी तकसीम थी बेतबार तअय्युन व अदम तअय्युन, मारिफा और नकरा। मारिफा की फिर 7 किस्में, इसमें ज़मीर, आलम, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुअर्रफ बिल्लाम, मुअर्रफ बिल इज़ाफ़ा और मुअर्रफ बिन निदा। इसको आपने अज़बर याद करना है। कल मैं इंशाल्लाह लफ्ज़ से शुरू हो के यहाँ तक मैं पूरा सुनूंगा आप लोगों से। इसम, फ़ेल, हर्फ, उसकी अलामात वगैरह वो भी आपको याद होनी चाहिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।